معزز کپتان، خوش آمدید. آپ کو مبارک ہو، آپ کریم کا حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ ٹریننگ آپ کی رجسٹریشن کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کو کریم کے ساتھ کام کرنے کے کچھ اصولوں کے بارے میں بتایا جائے گا. یہ ٹریننگ تقریباً 30 منٹ کی ہوگی جس کے آخر میں آپ سے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. کریم کیا ہے؟ کریم ایک ایسی سروس ہے جو پاکستان بھر میں مناسب ریٹس پہ ذریعہ آمد و رفت فراہم کرتی ہے. کیسے؟ صرف 2 موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے. یہ ہے احمد اور یہ ہے کریم کی کسٹمر اپلیکیشن جس کے ذریعے احمد ایک کار، بائک یا رکشہ بک کرتے ہیں، اور یہ ہے آپ کی کیپٹن اپلیکیشن جس کے ذریعے آپ کو یہ بکنگ موصول ہوتی ہے. رائڈ ایکسپٹ کرتے ہی احمد کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے کہ آپ انہیں پک کرنے آ رہے ہیں. اس طرح کریم کی اپلیکیشن بآسانی کیپٹنز اور کسٹمرز کو ملواتی ہے. عزیز کپتان، خوش آمدید. ہم آپ کو کریم کا حصہ بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس ٹریننگ میں آپ کو ایڈما کے استعمال کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ آپ بآسانی رائٹس حاصل کر سکیں. اس ٹریننگ کو غور سے ملاحظہ فرمائیے. ٹریننگ کے آخر میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جائے گا جس کو پاس کرنے پر آپ کریم کے نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے. چلو لیٹس گو. ایڈما کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جائیں اور ایڈما کا انتخاب کیجیے. ایڈما کو سائن ان کرنے کے لیے اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر اور 4 ہندسوں کا خفیہ کوڈ درج کیجیے. خفیہ کوڈ ٹیسٹ کے بعد آپ کو SMS کے ذریعے ارسال کیا جائے گا. کار سلیکشن کے بعد آپ کو یہ اسکرین دکھائی جائے گی. اگر کسی بھی ٹائم آپ رائڈز حاصل نہ کرنا چاہیں تو آپ گو آف لائن دبائیے. بعد میں اگر آپ رائڈز حاصل کرنا چاہیں تو گو آن لائن دبائیے. اگر کبھی کسٹمرز اویلیبل کار سے زیادہ ہوں تو پیک فیکٹر لاگو ہوگا. پیک کے دوران آپ کی آمدنی ایک محدود علاقے میں محدود وقت کے لیے پیک فیکٹر سے بڑھا دی جائے گی. رائڈز حاصل کرنے کے لیے ایکسپٹ کا بٹن دبائیے. کسٹمر کی پک اپ لوکیشن پک اپ میں درج ہے. ایکسپٹ کرنے کے بعد فوراً آن مائی وے کا بٹن دبائیے. اب اگر آپ کو کسٹمر کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں معلوم تو بلیک بٹن دبا کر گوگل میپ کے ذریعے نیویگیٹ کر کے کسٹمر کی لوکیشن پر جا سکتے ہیں. کسٹمر کی لوکیشن پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو ویلکم کرتا ہے. ڈن کا بٹن دبا کر یا بیک کا بٹن دبا کر آپ ایڈما کی پرانی اسکرین پر واپس آ جائیں گے. اب کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچ کر ارائیو فار پک اپ کا بٹن دبائیے. کسٹمر کے پاس ایک میسج چلا جائے گا کہ آپ ان کو لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں. اب آپ کے پاس اسٹارٹ رائڈ کی اسکرین شو ہوگی. کسٹمر سے ان کا نام کنفرم کیجیے اور اسٹارٹ رائڈ کا بٹن دبائیے. اب آپ کے پاس اینڈ رائڈ کی اسکرین شو ہوگی. اگر کسٹمر نے اپنے اترنے کی لوکیشن ڈالی ہے تو آپ کے پاس بلیک نیویگیشن کا بٹن دوبارہ سے شو ہوگا، اور اگر نہیں ڈالی تو ہر اینڈرائڈ موبائل میں گوگل میپ بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوتا ہے. آپ خود سے بھی لوکیشن ڈال کے جا سکتے ہیں. بلیک بٹن کو دبا کر نیویگیشن کا استعمال کیجیے اور گوگل میپ کے ذریعے کسٹمر کی ڈراپ آف لوکیشن پر پہنچ جائیے. گوگل میپ میں ریڈ لائن کا مطلب ٹریفک جام ہے، یلو لائن کا مطلب ٹریفک رش ہے لیکن چل رہا ہے، بلو لائن کا مطلب روڈ کلیئر ہے، گرے لائن متبادل رستہ ہوتا ہے. کسی بھی منزل پر پہنچنے کے 2 سے 3 رستے ہو سکتے ہیں تو آپ کسی اور رستے سے بھی جا سکتے ہیں گرے لائن پہ کلک کر کے. جیسے ہی آپ کسٹمر کی ڈراپ آف لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو ویلکم کرتا ہے. ڈن کا بٹن دبا کر یا بیک کا بٹن دبا کر واپس سے اپنی پرانی اسکرین پہ آ جائیے. ہر رائڈ کے 5 مراحل ہوتے ہیں: ایکسپٹ، آن مائی وے، ارائیوڈ فار پک اپ، اسٹارٹ رائڈ، اینڈ رائڈ. اینڈ رائڈ کرنے پر
आपको कस्टमर से कैश कलेक्ट करने की सहूलत मुयस्सर है। कैश कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट कैश के बटन को दबाइए। कस्टमर की बताई हुई रकम दर्ज कीजिए और ओके का बटन दबाइए। अगर कस्टमर की अदा की गई रकम फेयर से ज्यादा हो तो उसको कंफर्म दबाकर तस्दीक कीजिए। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहे तो आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। अगर आप अपनी राइट्स के बारे में जानना चाहें तो होम का बटन दबाइए और कैप्टन पोर्टल का इंतखाब कीजिए। अगर आपको अपने ट्रिप से मुताल्लिक कोई भी शिकायत हैं तो आप डिस्प्यूट ऑप्शन के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं। ट्रिप डिस्प्यूट करने के लिए ट्रिप को सिलेक्ट कीजिए और डिस्प्यूट का बटन दबाइए। आप डिस्प्यूट की तफसीलात लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि करीम के साथ काम करते हुए आप 2 फोन्स का इस्तेमाल करें, एक एडमा चलाने के लिए और दूसरा कॉल्स रिसीव करने के लिए। जब भी आप कॉल के दौरान होते हैं आपका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है और एडमा इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ट्रिप्स नहीं मिलेंगी और आपके ऑनलाइन घंटे भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करें कि 2 फोन्स का इस्तेमाल करें। आपका रजिस्टर्ड नंबर पोर्टेड नहीं होना चाहिए। किसी भी एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर तब्दील हुआ नंबर पोर्टेड नंबर कहलाता है। इन नंबर्स पर अक्सर मैसेजेस रिसीव नहीं होते। अपनी एडमा पिन कोड को खुफिया रखें। करीम का कोई भी नुमाइंदा आपसे एडमा पिन कोड नहीं मांगेगा। अगर कोई भी आपको कॉल करके पिन कोड मांगे तो इसको फौरन अपने करीबी करीम दफ्तर में रिपोर्ट करें। शुक्रिया। वीडियो में बताए गए ये 5 बटन्स आपके करीम के सफर में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इनको अच्छी तरह समझ लें। एक्सेप्ट का बटन तब नजर आता है जब आपको राइड आती है। आपके पास राइड एक्सेप्ट करने के लिए 10 सेकंड होते हैं। इसके बाद ये राइड अगले कैप्टन को ट्रांसफर हो जाती है। एक्सेप्ट का बटन दबाकर फौरन ही ऑन माय वे का बटन दबाएं और कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर रवाना हो जाएं। पिन लोकेशन पर पहुंचकर ही अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन दबाइए। जब कस्टमर आपके साथ बैठ जाएं, तब उनसे पूछकर स्टार्ट राइड का बटन दबाएं। एंड राइड का बटन सिर्फ मंजिल पर पहुंचने के बाद कस्टमर से पूछकर ही दबाएं। याद रखिए कि सिर्फ वो राइड एक्सेप्ट करें जो आप पूरी करने के लिए तैयार हों। राइड के कुछ अहम असूल याद रखें। सिर्फ वो राइड एक्सेप्ट करें जो आप पूरी करने के लिए तैयार हैं। एक्सेप्ट करने के फौरन बाद ऑन माय वे का बटन दबाएं और कस्टमर की तरफ रवाना हो जाएं। पिन लोकेशन पर पहुंचने के बाद अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन दबाएं। अब एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। अगर फेयर 160 रुपए हो, कस्टमर आपको 300 रुपए दे और आपसे कहे कि इसमें से 40 रुपए आपकी टिप है, तो आप कैलकुलेटर में कितनी अमाउंट दर्ज करेंगे? इसका जवाब है 260। कस्टमर आपको जो अमाउंट दें उसमें से टिप के अलावा सारी अमाउंट कैलकुलेटर में दर्ज करें। याद रखें कि ट्रिप फेयर से सिर्फ 400 रुपए ऊपर रकम कैलकुलेटर में दर्ज की जा सकती है। मसलन अगर फेयर 200 रुपए हो और कस्टमर आपको 1000 रुपए के नोट दें तो इसमें से सिर्फ 200 जमा 400 यानी 600 रुपए कैलकुलेटर में दर्ज किया जा सकता है। बाकी रकम कस्टमर को कैश में वापस कर दें। रीअसाइनिंग और कैंसलिंग राइड्स। कैप्टन्स को राइड कैंसिल करने का इख्तियार दिया जाता है। लोकेशन पर आकर अराइव फॉर पिकअप दबाने के बाद अगर 10 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर जाए तो आपके पास कैंसिल जॉब का ऑप्शन आ जाता है। आप इससे राइड कैंसिल कर सकते हैं। राइड कैंसिल करने से पहले कस्टमर को इन्फॉर्म जरूर करें।
कस्टमर पर दबाव डाल के राइड कैंसिल करना करीम के असूलों के खिलाफ है। एक्सेप्ट की हुई राइड जरूर पूरी करें। अगर 4 से ज्यादा कस्टमर हो, कस्टमर के पास असलहा या गैर कानूनी मादा हो या फिर वो किसी नो गो एरिया में जाने को कहे तो हेल्पलाइन पर कॉल करके राइड को अनअसाइन करवाएं। हर राइड के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को रेट करें। 5 स्टार का मतलब है कि बहुत अच्छा कस्टमर और 1 स्टार का मतलब है कि बहुत बुरा कस्टमर। इसी तरह राइड के बाद कस्टमर भी आपकी रेटिंग करेंगे। अगर किसी कस्टमर की रेटिंग 4 से गिर जाए तो उसे करीम के प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी कैप्टन की रेटिंग 4 से गिर जाए तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिले जो आपको कभी दोबारा नहीं चाहिए तो आपके पास कस्टमर को ब्लॉक करने का इख्तियार होता है। रेटिंग के नीचे एक ब्लॉक दिस कस्टमर का बटन होता है। इसे दबाकर आप कस्टमर को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपको इस कस्टमर की आइंदा कोई राइड्स ना मिलें। लोकेशन और नेट ऑन करना। इंटरनेट या 3G के बगैर एडमा ऐप नहीं चलेगी। 3G ऑन करने के लिए सेटिंग्स पर जाएं और वायरलेस एंड नेटवर्क्स के नीचे डेटा यूजेज को सिलेक्ट करें। इसके बाद सेलुलर डेटा को सिलेक्ट करें। 3G ऑन हो जाएगा और आपका नेट चल जाएगा। लोकेशन ऑन करने से आपकी गाड़ी गूगल मैप पर वाज़ेह हो जाती है और ऐसा करने से करीम की एप्लीकेशन आपको करीब से आने वाली राइड्स भेज सकता है। अपने मोबाइल्स की सेटिंग्स पर जाएं। लोकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऑन और ऑफ वाले बटन को सिलेक्ट करें। ये बदल कर हरा यानी कि ऑन हो जाएगा। उसके बाद मोड को सिलेक्ट करना भी जरूरी है। मोड को सिलेक्ट करके हाई एक्यूरेसी का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आपकी लोकेशन ऑन हो चुकी है और हमें आपकी मौजूदगी का पता चल गया है। एडमा ऐप से गूगल मैप्स यानी नक्शा इस्तेमाल करना। गूगल मैप्स आपको मोबाइल पे हर जगह के रास्ते बताएगा। गूगल मैप्स की ऐप भी हर फोन में होती है। उसे यूज करने के लिए ऐप खोलें। ऊपर सर्च बार को सिलेक्ट करके उसमें ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालें। नीचे लिस्ट में से जगह का नाम ढूंढें, सिलेक्ट करें और फिर डायरेक्शंस को सिलेक्ट करें। आपकी मंजिल का रास्ता मैप पे वाज़ेह हो जाएगा। स्टार्ट टैप करने पे आपको पूरे रास्ते हिदायत मौसूल होंगी। ऑनलाइन आवर्स क्या हैं और पेमेंट की मालूमात। कैप्टन बनने के बाद राइड्स मिलने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी होता है। ऑनलाइन जाने के लिए एडमा की ऐप खोलें। उसके बाद गो ऑनलाइन को सिलेक्ट करें। अब आपको राइड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको किसी वजह से वक्फा चाहिए, आपका ऑफलाइन होना जरूरी है। ऑफलाइन जाने के लिए एडमा की ऐप खोलें और गो ऑफलाइन का बटन दबाएं। ब्रेक के बाद वापस ऑनलाइन जाना मत भूलिएगा। राइड की पेमेंट की मालूमात। सवारी का किराया 2 मुख्तलिफ तरह मौसूल हो सकता है। कुछ सवारियां कैश राइड्स होंगी, यानी पेमेंट राइड के फौरन बाद आपको कैश की सूरत में मिल जाएगी। बाकी वो राइड्स हैं जिनमें कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड, अपना करीम वॉलेट या कोई करीम से भेजा हुआ रियायती कोड इस्तेमाल किया है। इन सवारियों की कैश पेमेंट नहीं होती। ये रकम करीम आपको मुकम्मल हिसाब किताब से आपके इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में अदा करेगा। डिस्प्यूट की तफसीलात। डिस्प्यूट के जरिए हम आपकी राय और शिकायत की मालूमात हासिल करते हैं। डिस्प्यूट के बटन के 3 फवाइद हैं। अगर आपने गलती से ज्यादा कैश अमाउंट एंटर कर दिया है तो हमें आगाह कर दें। अगर आपने गलती से कम कैश अमाउंट एंटर कर दिया है तो हमें आगाह कर दें। अगर आपकी कोई राय या शिकायत है, दी गई जगह में आप उसे दाखिल कर दें। अगर आप किसी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नीचे दिए गए गोल बटन के जरिए आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमें अपनी सूरत हाल से आगाह कर दें। कैप्टन पोर्टल एडमा में वो जगह है जहां आपको अपनी सारी ट्रिप्स नजर आती हैं। एडमा में उल्टे हाथ पर ऊपर दिए गए बटन को दबाइए और फिर कैप्टन पोर्टल का ऑप्शन चुनें।
آپ کے کیپٹن پورٹل میں آپ کو اپنی ساری ٹرپس، ارننگز یعنی ٹرپس سے کمائی، بونس، گارنٹیز، اویلیبل آورز یعنی آن لائن گھنٹے، ریٹنگ اور ایکسپٹنس ریٹ نظر آئیں گی۔ انسینٹیو ان باکس۔ اپنے انسینٹیو یعنی گارنٹی اور بونس کی آفرز دیکھنے کے لیے ایڈما پہ الٹے ہاتھ پہ بٹن پہ کلک کریں، وہاں سے کیپٹن پورٹل پر جائیں۔ کیپٹن پورٹل میں انسینٹیوز پر کلک کریں، اس سے آپ کو روزانہ کی بونس اور گارنٹیز نظر آ جائیں گی۔ اس سے آپ گارنٹی اور بونس کی ریکوائرمنٹس دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اویلیبل آورز یعنی گھنٹے، ایکسپٹنس ریٹ اور ریٹنگ کی ریکوائرمنٹ۔ جب کسی جگہ بہت ڈیمانڈ یعنی کسٹمر بکنگز ہوتی ہیں تو اس جگہ پیک لاگو ہو جاتی ہے۔ یہ علاقے ایڈما میں لال رنگ میں نظر آتے ہیں۔ پیک فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ فیئر پیک کی فیصد سے بڑھ جاتا ہے۔ مثلا اگر پیک کے بغیر فیئر 100 روپے بنتا ہے اور 1.2 کی پیک لاگو ہے تو فیئر 120 روپے بنے گا۔ کوشش کر کے ان پیک ایریاز میں رائڈ حاصل کیا کریں تاکہ آپ کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو۔ گو پلس کے کیپٹنز کو آپٹ ان کا آپشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گو اور گو پلس کی بکنگز دونوں ملیں گی۔ آپٹ ان کرنے کے لیے ایڈما میں جا کر سیٹنگز میں آپٹ ان کو یس کر دیں۔ گو پلس اور بزنس کے کیپٹنز کو دو طرح کی بکنگز ملتی ہیں، ناؤ اور لیٹر۔ ناؤ بکنگز وہ ہوتی ہیں جس میں کسٹمر کو اسی وقت گاڑی چاہیے ہوتی ہے۔ لیٹر بکنگز وہ ہوتی ہیں جس میں کسٹمر کو بعد میں گاڑی چاہیے ہوتی ہے۔ لیٹر بکنگز ان خاص کیپٹنز کو ملتی ہیں جن کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے۔ لیٹر بکنگ دیکھنے کے لیے ایڈما میں مائی جابز پر جائیں۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ اس بکنگ پہ آپ دیے گئے ٹائم پر لوکیشن پر پہنچ جائیں۔ ان رائڈ بکنگ یعنی کہ دوران سفر بکنگ۔ اب آپ کو رائڈ کے دوران آپ کے رائڈ ختم ہونے سے پہلے ہی اگلی رائڈ وصول ہو جائے گی۔ یہ اختیار آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب آپ کم وقت میں زیادہ رائڈز کر سکتے ہیں۔ یہ رائڈ آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ نے یا کسٹمر نے ڈراپ آف لوکیشن ڈالی ہوئی ہوگی۔ اس بکنگ کے 5 مراحل ہیں۔ اگر چاہیں تو بکنگ ایکسپٹ کریں، اپنا موجودہ سفر عام سفر کی طرح ختم کریں۔ آپ کی اسکرین پر موجودہ اور آنے والے سفر کی تفصیلات نظر آ رہی ہوں گی۔ موجودہ سفر ختم کر کے کسٹمر کو ریٹ کریں اور پھر آن مائی وے دبا کر اگلی رائڈ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ کی ٹرپ ارننگز، بونس، گارنٹی اور کسٹمر سے وصول کیا ہوا کیش کا حساب ملا کر آپ کا ٹوٹل بنتا ہے۔ اضافی کیش بیلنس وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کی ارننگز، گارنٹی اور بونس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کو کریم کو دینی ہے۔ اگر آپ کے کیپٹن پورٹل میں نیچے دیے گیا ٹوٹل کالے رنگ میں ہے تو یہ اماؤنٹ کریم آپ کو دے گا۔ اگر یہ اماؤنٹ لال رنگ میں ہے تو یہ اضافی کیش بیلنس ہے اور آپ نے کریم کو دینا ہے۔ اضافی کیش بیلنس زیادہ ہونے پر آپ کی کیش بکنگز معطل ہو جائیں گی۔ جب اضافی کیش بیلنس بلاکنگ لمٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایڈما پر آپ کو وارننگ میسج نظر آئے گا۔ کیش ٹرپس معطل ہونے سے پہلے جلد از جلد اضافی کیش بیلنس یا اس سے زیادہ اماؤنٹ کریم کو ایزی پیسہ کے ذریعے جمع کروائیں۔ کسٹمر سے وصول کیا ہوا کیش آپ کریم کو ایزی پیسہ کے ذریعے آسانی سے جمع کروا سکتے ہیں۔ کسی بھی ایزی پیسہ دکاندار کو بتائیں کہ آپ کارپوریٹ کسٹمر کریم کو پیسے جمع کروانے چاہتے ہیں۔ اسے اپنا رجسٹرڈ فون نمبر، CNIC اور کیپٹن آئی ڈی یعنی ریفرنس آئی ڈی دیں اور 24 گھنٹے میں یہ رقم آپ کے کیپٹن پورٹل میں نظر آ جائے گی اور آپ کے وینڈر کو اس کے لیمو پورٹل میں بھی نظر آ جائے گی۔
ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स के लिए इन चीजों पर ध्यान दें। पीक औकात पर ज्यादा राइड्स लें ताकि फेयर ज्यादा मिले। वेटिंग चार्जेस कैप्टन्स को ही मिलते हैं। अगर कस्टमर आपको वेट कराता है तो इससे आप ही की अर्निंग्स बढ़ती हैं। अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस या तकाफुल जरूर करवाएं ताकि किसी भी सूरत हाल में आप इंश्योर्ड हों। गाड़ी की मेंटेनेंस और सफाई का खास ख्याल रखें ताकि आपको अच्छी रेटिंग मिले। किसी भी तनाज़े की सूरत में सपोर्ट सेंटर तशरीफ लाएं या फिर एडमा में डिस्प्यूट दर्ज करें। करीम आपको एयरपोर्ट राइड ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता है। ये वीडियो आपको हमारे एयरपोर्ट कस्टमर्स का सफर बेहतर करने में मदद फराहम करेगी। पहले हम आपको कुछ जरूरी हिदायत देते चलें। एयरपोर्ट की बुकिंग सिर्फ हमारे बेहतरीन कैप्टन्स को दी जाती है, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कस्टमर्स का खास ख्याल रखें। अपने लिबास और गाड़ी की सफाई का खास ख्याल रखें। एयरपोर्ट की पार्किंग फीस आपके फेयर में पहले ही शामिल कर दी जाती है, इसलिए कस्टमर से ये फीस तलब ना करें। इन हिदायत पर अमल करने से आपको मजीद एयरपोर्ट की राइड्स फराहम की जाएंगी जो आपकी रेटिंग में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। नाउ बुकिंग की सूरत में राइड एक्सेप्ट करने के बाद ऑन माई वे दबाकर फौरी तौर पर एयरपोर्ट का रुख करें। पिकअप लोकेशन पर पहुंचते ही अराइव्ड फॉर पिकअप दबाएं और कस्टमर्स के आने का इंतजार करें। कोई भी मुश्किलात पेश आने की सूरत में कैप्टन सपोर्ट को कॉल करें और बुकिंग कैंसिल ना करें। बिजनेस लेटर एयरपोर्ट बुकिंग की सूरत में फ्लाइट की मालूमात के लिए नोट्स टू कैप्टन जरूर पढ़ें और मुकर्ररा वक्त से 45 मिनट पहले ऑन माई वे दबाने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएं और वक्त से 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। गाड़ी पार्क करें और करीम के दस्तयाब करदा प्ले कार्ड पर कस्टमर का नाम लिखकर अराइवल गेट की तरफ जाएं। अराइवल गेट पर पहुंच के अराइव्ड फॉर पिकअप दबाएं और प्ले कार्ड को वाज़ेह तौर पर अपने सर के ऊपर बुलंद करके दिखाएं ताकि कस्टमर को आपको ढूंढने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना हो। कस्टमर से सलाम दुआ करें और उनका सामान उठाने में मदद फराहम करें। कस्टमर का सामान ख्याल से गाड़ी के पिछले खाने में रखें। कस्टमर की हिफाजत का खास ख्याल रखते हुए उनकी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगी और आपका और करीम का सफर यूं ही कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। कैप्टन्स के लिए चंद हिदायत। करीम चाहता है कि उनके कैप्टन्स का हर सफर पुरसुकून और खुशगवार हो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये कुछ हिदायत हैं। कस्टमर्स के साथ एहतराम से पेश आएं, खास तौर पर खवातीन से। कस्टमर्स को सामान उठाने और रखने में मदद करें। कस्टमर्स के साथ गैर जरूरी बातों से परहेज करें। बार बार एक ही कस्टमर को पिक मत करें, इससे बाकी कैप्टन्स को राइड एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलता और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। घर वालों और दोस्तों को जाती राइड्स पर लें। उनको कैप्टन बन के लेने की सूरत में
आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। फेक राइड्स वो राइड्स होती हैं जो आप अपने कस्टमर अकाउंट या दोस्तों के कस्टमर अकाउंट से बनाते हैं। ये जाली राइड समझी जाती हैं और हमारा सिस्टम इन राइड्स को पकड़ लेता है। फेक राइड्स करने की सूरत में कमाई, बोनस और गारंटी वापस ले ली जाएगी और आपका करीम अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। राइड के बाद कस्टमर को कांटेक्ट करना करीम की पॉलिसी के खिलाफ है और हरासा में गिना जाता है। कस्टमर का ख्याल रखें और उनसे एहतराम से पेश आएं। करीम के 80% कस्टमर खवातीन होती हैं और उनका एहतराम करना जरूरी है। राइड के दौरान उनसे बातचीत की कोशिश ना करें और रेयर व्यू मिरर से उन्हें ना देखें। उनसे सवालात पूछना या फिर कपड़े वगैरह पर कमेंट करना सब हिरासा में शामिल होता है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। करीम के कुछ कानून हैं जिनके खिलाफ जाने पर आप पर फाइन लागू हो सकता है। कस्टमर के बगैर राइड शुरू करके खत्म ना करें। क्रेडिट कार्ड और वॉलेट से पे की जाने वाली राइड्स को मना ना करें। इजाफी रकम पूरी एंटर करें, कस्टमर को इसका मैसेज मौसूल होता है। एयरपोर्ट और बकिया टोल गेट्स की रकम आपके फेयर में शामिल होती है। कस्टमर से अमाउंट अलग से ना मांगे। किसी और की रजिस्टर्ड व्हीकल ना इस्तेमाल करें। गैर जरूरी और मजहबी हवाले से बातचीत से गुरेज करें। कस्टमर को इनकी मंजिल पर ले जाने से मना ना करें। कस्टमर से किसी किस्म की बदतमीजी से गुरेज करें। राइड के दौरान फोन इस्तेमाल ना करें। कस्टमर को वेटिंग से इनकार ना करें, आपको इसके पैसे मिलते हैं। कस्टमर को राइड कैंसिल करने पर मजबूर ना करें। एसी ऑन करने से भी कभी इनकार ना करें। इन सब चीजों से आप पर फाइन लागू हो सकता है और आपको बुरी रेटिंग भी मिल सकती है, जिससे आपके बोनस और गारंटी पर असर पड़ता है। जो एरिया लाल रंग में नहीं है, उस एरिया में करीम ऑपरेट नहीं करता। इस इलाके के बाहर आपको राइड्स नहीं मिलेंगी। राइड्स पाने के लिए लाल एरिया में ही रहें। करीम अपने कैप्टन्स के लिए खुसूसी इंश्योरेंस ऑफर करती है। अगर राइड एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस आपके मेडिकल खर्चे कवर करती है। आपकी खुद की गाड़ी। अब आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। शराइत: 100 राइड्स मिनिमम की हुई होनी चाहिए, 4.5 या उससे ज्यादा की रेटिंग होनी चाहिए, माजी में जाली बुकिंग या ब्लॉकिंग या कोई और वायोलेशन नहीं हुई होनी चाहिए। मजीद मालूमात के लिए करीबी सपोर्ट ऑफिस रुजू फरमाएं। ICIL वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन होने के 10 दिन बाद ICIL के कुछ नुमाइंदे आपके घर आपका बैकग्राउंड चेक करने आएंगे। हेल्पलाइन: यह कैप्टन्स के लिए हेल्पलाइन है। आप इस हेल्पलाइन पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और करीम के नुमाइंदे आपकी मदद करेंगे। 150 राइड्स तक आप इस हेल्पलाइन पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और 150 राइड्स होने के बाद यह सहूलत सिर्फ राइड के दौरान मुयस्सर होगी। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करें। याद रखें, यह हेल्पलाइन सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। मजीद इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट और गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए इनमें से किसी भी ऑफिसेज पे आप जा सकते हैं। कैप्टन टेस्ट। अब आपका 5 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पास करने के 24 घंटे बाद आपके पास SMS आ जाएगा जिसमें आपका कैप्टन आईडी और खुसूसी पिन कोड होगा। अगर आपका टेस्ट पास ना हो तो आप दोबारा ट्रेनिंग लेकर इसे फिर से दे सकते हैं। ट्रेनिंग लेने का शुक्रिया। हमारी पहचान, हमारे कप्तान।